Hello, listening friends. We are delighted you joined us again. नमस्कार श्रोता मित्रों, हम आनंदित हैं कि आप एक बार फिर से हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। We are continuing in our series of messages entitled How God Works. हम परमेश्वर कैसे कार्य करता है नामक संदेश श्रृंखला को जारी रखे हुए हैं। And I want to begin today by telling you a story. और मैं आपको एक कहानी सुनाते हुए प्रारंभ करना चाहता हूँ। It happened one gloomy day in 1857. ये 1857 में एक धुंधले से दिन की बात है। There was a man in New York City by the name of Jeremiah Lanther. न्यूयॉर्क शहर में जरमाया लैम्फर नाम का एक व्यक्ति था। He was looking at the newspaper as he was riding on the train to his office. ट्रेन में अपने दफ्तर जाते हुए वो समाचार पत्र पढ़ रहा था। And he became distressed when he read about the depression that has gripped the nation. और जब उसने उस आर्थिक मंदी के बारे में पढ़ा जिसने पूरे राष्ट्र को जकड़ा हुआ था तो वो बहुत दुखी हुआ। And this depression caused fear and panic among all people. और इसी मंदी ने सब लोगों के अंदर डर, भय और घबराहट पैदा कर रखी थी। Factories stopped production. फैक्ट्रियों में काम बंद था। Thousands of people were unemployed. हजारों लोग बेरोजगार हो गए थे। Now, Lanther himself was not rich or famous. अब लैम्फर खुद भी कोई अमीर या प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं था। He was only a clerk. वो केवल एक क्लर्क था। However, he was a man who believed that little plus God equal much. खैर किसी तरह से वो ये विश्वास रखता था कि परमेश्वर थोड़े को बढ़ाकर ज्यादा के बराबर करता है। With unwavering faith, he sent out letters to all his business acquaintances. इस अडिग विश्वास के साथ उसने सब व्यवसायी परिचितों को पत्र भेजे। He told them that each day at noon a prayer meeting would be held in his office. उसने उनसे कहा कि हर रोज दोपहर को उसके दफ्तर में एक प्रार्थना सभा होगी। Will they please come and join him? कृपया क्या वो आकर उसके साथ शामिल होंगे? With his optimistic faith, he arranged 20 chairs in a circle. अपने आशावादी विश्वास के सहारे उसने 20 कुर्सियां लगा दी। But no one showed up. परंतु कोई नहीं आया। He found himself all alone with 19 empty chairs. उसने 19 खाली कुर्सियों के साथ खुद को अकेला पाया। But there he knelt and cried to God. परंतु वहां उसने घुटने टेक कर परमेश्वर को पुकारा। Lord, change me and change my country. प्रभु मुझे और मेरे देश को बदल दे। The second day he was encouraged. दूसरे दिन वो उत्साहित हुआ। A few of his friends came. उसके कुछ मित्र आए। Then it wasn't long before all the 20 chairs were occupied. फिर सभी 20 कुर्सियां भरने में ज्यादा समय नहीं लगा। A short time later, कुछ ही समय बाद a similar gathering started on the Wall Street. ऐसी ही एक सभा वॉल स्ट्रीट में शुरू हो गई। Then another prayer meeting began on Williams Street. फिर एक और प्रार्थना सभा विलियम स्ट्रीट पर प्रारंभ हो गई। And then a fourth meeting started on Broadway. और फिर चौथी सभा ब्रॉडवे पर प्रारंभ हुई। Like wildfire, the movement spread to all parts of the country. जंगल की आग के समान ये आंदोलन देश भर में फैल गया। Before long, a genuine Holy Spirit awakening spread throughout the land. कुछ ही समय के अंदर पूरे देश में पवित्र आत्मा की वास्तविक जागृति पूरे देश में फैल गई। Some historians, including secular historians, have said संसारिक इतिहासकारों सहित कई इतिहासकारों ने कहा है that this movement of faith was an integral part of the economic recovery from the depression of 1857. कि विश्वास का ये आंदोलन 1857 की आर्थिक मंदी से उबरने का एक महत्वपूर्ण भाग था। Well, we may not be facing a worldwide economic depression yet, अभी हम शायद विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का सामना न कर रहे हों, but I want to tell you that there is a spiritual depression throughout the world. परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे संसार में एक आत्मिक मंदी चल रही है। The reason I told you this story, आपको ये कहानी बताने का कारण ये है I don't want a single person who's listening to us today कि मैं नहीं चाहता कि हम सुनने वालों में से एक भी व्यक्ति to say that he's only speaking about Elijah and Elijah's days. ये कहे कि हम केवल एलिया और एलिया के समय की ही बात कर रहे हैं। I wanted you to know that God uses ordinary people. मैं आपको बताना चाहता था कि परमेश्वर साधारण लोगों को इस्तेमाल करता है। That is, Elijah may be a big prophet for us today, वो ये कि एलिया आज हमारे लिए चाहे एक बड़ा भविष्यवक्ता हो, but in his day, he was nothing. परंतु अपने समय में वो कुछ भी नहीं था। I believe with all my heart that one person who believes that little plus God equals much मैं पूरे मन से ये विश्वास करता हूं कि एक भी व्यक्ति जो ये विश्वास करता हो कि परमेश्वर थोड़े को बढ़ाकर बहुत के बराबर करता है, will be able to make a difference. वो बहुत कुछ कर सकता है। This is the kind of faith that honors God. ऐसा विश्वास परमेश्वर के लिए आदर का कारण है।
And this is the kind of faith that God honors. और ऐसे ही विश्वास का परमेश्वर आदर करता है। It is this kind of faith that is willing to risk everything on the promises of God, to which God responds. यही विश्वास है जिसका परमेश्वर जवाब देता है, जो परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं के लिए सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार रहता है। It is the kind of faith that says, ऐसा ही विश्वास है जो कहता है, I may be nothing, but with God I can do all things. मैं चाहे कुछ भी नहीं हूं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ से मैं कुछ भी कर सकता हूं। It is this kind of faith that moves God into action. ऐसा ही विश्वास परमेश्वर को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। Elijah was such a man. एलिया ऐसा ही व्यक्ति था। He had no big genealogy, उसकी कोई बड़ी वंशावली नहीं थी, no family tree. कोई पारिवारिक विस्तार नहीं था, No one even knew where he came from. कोई ये तक नहीं जानता था कि वो कहां से आया। Elijah was a man whose name means Jehovah is my God. एलिया वो व्यक्ति था जिसके नाम का अर्थ था यहोवा मेरा परमेश्वर। One solitary man एक अकेला व्यक्ति who came and confronted Israel and Ahab the king. जिसने आकर इस्राएल और अहाब राजा का सामना किया, And he faced them with their immorality and corruption. और उसने उनकी अनैतिकता और भ्रष्टता पर उनका सामना किया। One man, एक व्यक्ति Elijah, एलिया, who after experiencing a prophetic ministry of declaration to the king and his wife the queen, जिसने राजा और उसकी पत्नी को घोषणा करने की भविष्यवक्ता सेवकाई के अनुभव के बाद, and to all those who are in the palace, और उन सब को जो उसके महल में थे घोषणा करने के बाद, he heard God say, उसने परमेश्वर को कहते सुना, go to Kerith. क्रीत को जा। This phrase means इस वाक्य का अर्थ है to be cut off and hidden for a while. दूसरों से कट कर कुछ देर के लिए छिपे रहना। This same Elijah was now confronted by a new crisis. अब इसी एलिया को एक और संकट का सामना करना था। In 1 Kings 17:7, राजाओं की पहली पुस्तक 17 अध्याय के 7 पद में Elijah is facing a new test. एलिया एक नई परीक्षा का सामना कर रहा है। Did you know that the way you handle a crisis situation can either honor God or dishonor Him? क्या आप जानते हैं कि आपका किसी संकटपूर्ण स्थिति से निपटने का तरीका परमेश्वर को आदर या निरादर दे सकता है? In verse 7, 7 पद में we are told that the brook Kerith has dried up. हमें बताया गया है कि किरत का नाला सूख गया। God is putting His man through back-to-back testing. परमेश्वर अपने जन को एक के बाद एक परीक्षा में डाल रहा था। 1 Kings 17:9. पहला राजा 17 अध्याय का 9 पद। God said to Elijah, परमेश्वर ने एलिया से कहा, go at once to Zarephath of Sidon and stay there. चलकर सारपत को जा और वहीं रह। I have commanded a widow in that place to supply you with food. मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। I wish that the word of God would have told us how Elijah reacted to this strange word from the Lord. काश परमेश्वर का वचन हमें बताता कि परमेश्वर के इस अजीब वचन पर एलिया की क्या प्रतिक्रिया थी। We don't know. हम नहीं जानते। However, तो भी this is how most of us would have reacted. हम में से अधिकतर इस पर कुछ ऐसी प्रतिक्रिया करते। We would ask God, God, are you sure? हम परमेश्वर से पूछते, परमेश्वर तुझे यकीन है? Have I heard you correctly? क्या मैंने सही सुना? We would begin to give God a geography lesson. हमने परमेश्वर को भौगोलिक भाषण देना शुरू कर दिया होता। God, परमेश्वर, you know that Zarephath is about 70 or 100 miles across the desert. तू जानता है कि सारपत इस उजाड़ के रास्ते 70 या 100 मील के करीब है। Zarephath is the land of the Phoenicians. सारपत फिनोशियों का देश है। Zarephath is a smelly and polluted place because they were melting metals there. सारपत बदबूदार और भीड़ भाड़ वाला स्थान है क्योंकि वहां धातु को पिघलाया जाता है। Zarephath is where the worship of Baal is at its worst. सारपत ही वो स्थान है जहां सबसे ज्यादा बाल की उपासना होती है। Why Zarephath, Lord? प्रभु सारपत ही क्यों? Why sent me there? मुझे वहां क्यों भेज रहा है? God was not only preparing Elijah for the greatest moment of his life, but in the greatest moment in all of biblical history. परमेश्वर न केवल एलिया को उसके जीवन की सबसे महान घटना के लिए तैयार कर रहा था, परंतु बाइबल इतिहास की सबसे महान घटना के लिए। God was going to teach Elijah a very important lesson. परमेश्वर एलिया को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाने जा रहा था। And the lesson is this. और वो सबक ये है, Little is much when God is in it. थोड़ा भी बहुत है जब इसमें परमेश्वर है। It is
something we need to learn in these last days. इन अंतिम दिनों में हमें यही सीखने की आवश्यकता है। Many of us are still living by sight and not by faith. हम में से बहुत सारे अभी भी विश्वास से नहीं परंतु दृष्टि से ही जी रहे हैं। God is going to teach Elijah that little plus God equals much too much. परमेश्वर एलिया को सिखाने जा रहा है कि थोड़े को भी परमेश्वर बहुत बहुत के बराबर करता है। God doesn't always ask you to go to places that seem rational to you. परमेश्वर सदा आपको उन स्थानों में जाने के लिए नहीं कहता जो आपको तर्कसंगत लगते हैं। He doesn't always send you on what seems to be a logical trip. वो हमेशा आपको सही लगती यात्रा पर नहीं भेजता। Zarephath was illogical and irrational for Elijah. सारपत एलिया के लिए अविवेकी और असंगत था। But Zarephath was both logical and rational as far as God was concerned. परंतु जहां तक परमेश्वर की बात थी तो सारपत तर्कसंगत और विवेकपूर्ण था। Let us see how that worked. आइए देखते हैं ये कैसे काम में आया। First, पहले Elijah was on King Ahab's most wanted list. एलिया राजा अहाब की भगौड़ों की सूची में सबसे ऊपर था। If there were 12 on his list, Elijah would have been number 1. यदि उसकी सूची में 12 थे तो एलिया नंबर 1 पर होगा। King Ahab was furious with Elijah because Elijah came and announced a drought and then he left. राजा अहाब एलिया पर बहुत आग बबूला था क्योंकि एलिया आया, अकाल की घोषणा की और चला गया। Secondly, दूसरा, Ahab's men would have looked for Elijah in all the logical places. अहाब के सैनिकों ने सब तर्कसंगत स्थानों में एलिया की तलाश की होगी। Ahab's men would have looked for him in all the rational places. अहाब के सिपाहियों ने सब विवेकपूर्ण स्थानों में से ढूंढा होगा। Thirdly, तीसरा, Zarephath was a Phoenician city. सारपत फिनोशियन शहर था। It was only 7 miles away from Sidon, where Jezebel's father was king. ये सिदोन से केवल 7 मील की दूरी पर था जहां इजबल का पिता राजा था। I reverence God with all of my heart. मैं अपने पूर्ण मन से परमेश्वर का आदर करता हूं। But this command to go to Zarephath appeared to me as if God was playing a practical joke on Elijah. सारपत को जाने की ये आज्ञा मुझे ऐसे लगती है जैसे परमेश्वर एलिया के साथ कोई व्यवहारिक मजाक कर रहा था। The man who was going to confront the prophets of Baal was sent to Jezebel's hometown. वो व्यक्ति जिससे बाल के नबियों का सामना करना था उससे इजबल के शहर में भेजा गया। God was sending him to the very heart and the very center of Baal worship. परमेश्वर उसको बाल उपासकों के बीच में और बिल्कुल उनके केंद्र में भेज रहा था। Let me ask you this. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, Have you ever found yourself in places in your life where it does not make sense at all? क्या आपने अपने जीवन में कभी खुद को ऐसे स्थानों में पाया है जहां इसका कोई तुक नहीं लगा? Have you ever sat down and said to yourself, क्या आपने बैठकर कभी खुद से कहा, God, I will go anywhere in life except that? परमेश्वर मैं जीवन में उस जगह को छोड़ और कहीं भी जाने के लिए तैयार हूं, Or, या God, I can put up with anything except this. परमेश्वर इसे छोड़ मैं और कुछ भी सहन कर सकता हूं। Then you find yourself ending up in that place. और अंततः आप खुद को उसी स्थान में पाते हैं। And Elijah ended up in Zarephath. और एलिया ने अंत में खुद को सारपत में पाया। Not only does God sometimes take you to what seemed to be irrational place and illogical trip, न केवल कई बार परमेश्वर आपको अविवेकी स्थान और न तर्क संगत लगते हुई यात्रा पर लेकर जाता है, but there is a second thing that I want you to notice here. परंतु यहाँ एक और बात है जो मैं चाहता हूं कि आप उस पर ध्यान दें। God often works on more than one front at the same time. परमेश्वर अक्सर एक ही समय में एक से ज्यादा मोर्चों पर काम करता है। Most of us are able to work on 1 or 2 or even 3 fronts at a given moment. हम में से अधिकतर एक समय पर केवल 1 या 2 या 3 मोर्चों पर काम कर सकते हैं। Some of us are brighter than others and have the capacity to do more than others. हम में से कुछ दूसरों से अच्छे हैं और हमारे अंदर ये क्षमता है कि हम दूसरों से अच्छा कर सके। But I personally cannot work on too many fronts at the same time. परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से एक समय पर एक से ज्यादा मोर्चों पर काम नहीं कर सकता। Some of you may. आप में से कुछ शायद कर सकते हो। However, परंतु तो भी God was working his purposes out
on so many fronts at the same time that Elijah couldn't even fathom. परमेश्वर एक ही समय पर बहुत सारे उद्देश्यों पर काम कर रहा था, ऐसे कि एलिया उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। Let's look at these fronts. आइए इन मोर्चों को देखते हैं। There was the obvious front of going from Keres to Zarephath simply because the brook dried up. कीरत से सारपत जाने का एक निश्चित मोर्चा था जिस पर परमेश्वर काम कर रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि नाला सूख गया था। God wanted to save Elijah from starvation. क्योंकि परमेश्वर एलिया को भूखमरी से बचाना चाहता था। But beyond the obvious, परंतु निश्चय से भी आगे God was working in Elijah's life in ways that Elijah could have never expected. परमेश्वर एलिया के जीवन में इस प्रकार से कार्य कर रहा था जिसकी एलिया ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। Let me give you some of these. मैं आपको इनमें से कुछ बताता हूं। First of all, सबसे पहले God was showing Elijah that he had a larger purpose for the world than Elijah could ever imagine. परमेश्वर एलिया को दिखा रहा था कि जितनी एलिया कल्पना कर सकता था, संसार के लिए परमेश्वर का उससे कहीं बड़ा उद्देश्य था। He was showing him that he is the God of the universe. वो उसे दिखा रहा था कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड का परमेश्वर है। When you stop being effective, God takes you and puts you on a shelf. जब आप प्रभावशाली होना बंद कर देते हैं तो परमेश्वर आपको ले जाकर कहीं रख देता है। As if God was trying to say to Elijah the following: जैसे कि परमेश्वर एलिया से ये कहने का प्रयत्न कर रहा हो, I have the whole world on my heart. मेरे मन में पूरा संसार है, I love the whole world. मैं पूरे संसार से प्रेम करता हूं। Did you ever think that this seemingly illogical and irrational trip would serve as Jesus' text for his first public sermon? क्या आपने कभी सोचा कि एलिया की ये अविवेकी और तर्कहीन लगती यात्रा यीशु के पहले सार्वजनिक संदेश के काम आएगी? You can read it in Luke 4:24. आप इसे लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 24 पद में पढ़ सकते हैं। When Jesus began declaring his messiahship, जब यीशु ने अपने मसीहा होने की घोषणा करना प्रारंभ किया, the first sermon he preached was in his hometown of Nazareth. पहला संदेश जो उसने प्रचार किया वो था उसके मूल नगर नासरत में। He went to the synagogue and opened the scripture to Isaiah and started reading. वो यहूदी धर्मसभा में गया और लिखित को यशाया पर खोल कर पढ़ना प्रारंभ किया। And then he said, और फिर उसने कहा, Today this scripture is fulfilled in your hearing. आज तुम्हारे सुनते ये वचन पूरा हुआ। The people understood what Jesus meant. लोग समझ गए कि यीशु का क्या अर्थ था। I am the expected Messiah. मैं ही वो मसीह हूँ जिसकी प्रतीक्षा हो रही थी। They probably mumbled something like this. शायद उन्होंने आपस में फुसफुसाया होगा। We've heard that before. ये तो हमने पहले भी सुना है। Then Jesus continues. फिर यीशु ने आगे कहा, In verse 25 of Luke 4, लूका 4 अध्याय के 25 पद में, I assure you that there were many widows in Israel in Elijah's time. मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि एलिया के समय इसराइल में बहुत सारी विधवाएं थी। Yet Elijah was not sent to any of them, तो भी एलिया को उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया, but to the widow in Zarephath in the region of Sidon. परंतु सिदोन के इलाके में सारपत नगर की विधवा के पास। Then he told them about how there were many lepers, but God healed the Syrian general. फिर उसने उन्हें बताया कि कैसे वहां कितने और कोढ़ी थे, परंतु परमेश्वर ने सीरियाई जनरल को ही चंगा किया। Do you know how they reacted when they heard these words from Jesus' mouth? आप जानते हैं यीशु के मुंह से ये शब्द सुनने के बाद उन्होंने क्या प्रतिक्रिया की? They picked up stones and they wanted to kill Jesus, उन्होंने पत्थर उठाए और वो यीशु को मारना चाहते थे, because they failed in their narrow-mindedness and self-sufficiency to realize that God loves the whole world. क्योंकि अपनी तंग दिली और आत्म पर्याप्तता के कारण वो ये समझने में असफल रहे कि परमेश्वर समस्त संसार से प्रेम करता है। God had a purpose for the whole world. परमेश्वर के पास संपूर्ण संसार के लिए एक उद्देश्य है। And so many of us are comfortable in our communities and think that God just loves us. और हम में से बहुत सारे अपने अपने समुदायों में प्रसन्न हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर तो हमसे प्रेम करता ही है। Do you believe that God loves the whole world? क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सारे संसार से प्रेम करता है? Then don't ever forget that God is working His purposes out in more than one front. तो फिर कभी मत भूलिए कि परमेश्वर एक से अधिक मोर्चों पर अपने उद्देश्य पर कार्य कर रहा है। He is working in every corner of the world. वो संसार के हर कोने में कार्य कर रहा है। Tune in next time and I will tell you the second front in which God works. अगली बार भी सम्मिलित हूँ और मैं आपको दूसरे मोर्चे के बारे में बताऊंगा जिसमें परमेश्वर कार्य करता है। Until then, I wish you God's richest blessing. तब तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ।